Assalamu alaikum. Hi, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start the other few questions related to the topic matrices from the past papers. Okay, in this question, you have to find out in the part A, P minus 3Q. Okay, so just first you have to times 3 with Q, then you have to solve P minus 3Q. Okay, so just write the 3, write the matrices Q first and times it with 3. Okay, so 3 zeros are 0. 3 times minus 1 equals to minus 3. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. Okay, so this is the matrix 3Q. So just write the matrix P first. 4 minus 2, 4 minus 1, 4 minus 1, minus 2 and 3, sign minus, and the 3Q is basically this that you figured out already. So write 0, minus 3, 15 and 12. Okay, 4 minus 0, minus 2, minus 3. Okay, this is minus 2, so you have to write minus 2 here, and this is the negative sign, so you have to write negative sign here, and then you have to minus with minus 3. So bracket minus 3 you have to write like this. Okay, minus 1 and minus 15, 3 and minus 12, 4 minus 16, it will give you 1 and minus 8. Okay, okay, here up minus 9 लिखना है because 3 minus 12 is 9. Okay, so look the answer. 4 minus 16, 1 and minus 9 is the answer, and basically it will give you the 3 marks. Okay, sorry, 2 marks. Okay, in the next question, the determinant of R is 11, so just let me write the matrix R in front of part B. Okay, so determinant means R determinant is equals to 40, 40, 40, 1, 2. Okay, and the determinant of R is 11, and you know, okay, you have to times 4 with 2 and t with 1 and subtract it. 4 with 1 minus t with 1. Okay, so 4 times 1 is 4 minus t times t. Okay, 4 to the 8 here. 2, 4 times 2 and 8. Now you have to find out the value of t. So look, ये 8 वहाँ चला जाएगा.
So 11 minus 8 is equals to minus t. So it will give you 3 is equals to minus t, but you have to write the value of t in positive sign. So this minus sign shift towards this 3. So it will become minus 3 is equals to t. So the answer for t is minus 3. Okay, so the determinant of r is 11. When you substitute the values, you will get the answer for t. And when I solved this question to figure out the t, so I got minus 3 as the answer. Okay, now in this question you have to find out the r inverse. Okay, so you know the value of t is what? Minus 3. Okay, 4. Just replace this t with minus 3 because you figured out. So t replaced with minus 3, 1 and 2. Okay, now you have to find out the value of inverse. As you know, if you have to find out the inverse, it means if you have to find out the inverse like this, so you know, okay, you have to find out the adjoint of a and determinant of a and divided with 1, and then you have to find the adjoint, like you have to replace the side like this. अगर आपके पास यहाँ पर एक ब्रैकेट a मैंने ये दे दिया, ठीक है, तो अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट निकालूंगा और एडजॉइंट के लिए ये चीज़ स्वैप हो जाएगी. तो डी ऊपर ए नीचे और इस सी और इस बी के साइन चेंज हो जाएंगे. पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बी हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव सी हो जाएगा. ठीक है, यू हैव टू फाइंड इट लाइक दिस. ठीक है, तो अब इसके लिए हम आर करना है. आर इनवर्स के लिए यू नो डिटर्मिनेंट ऑफ आर आपको दिया हुआ है, वो हम लोग बाद में पुट करते हैं. और आपके पास जो आर ब्रैकेट है वो ये है, तो आप इसकी और इसकी जो है पोजीशन को स्वैप करेंगे 2 एंड 4, एंड आपके पास ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे. सो माइनस 3 विल बिकम प्लस 3 एंड प्लस 1 बिकम माइनस 1. ओके, सो आपने आप ये कर लिया. ओके, जस्ट आप यहाँ पे क्या करें, आर का डिटरमिनेंट क्या है 11 और 2 3 माइनस 1 एंड 4. ठीक है, अब आपने जब ये कर लिया, जैसे आप इसको इसी फॉर्म में लेके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. सो 1 डिवाइडेड बाई 11 is equal matrices 2 3 minus 1 and 4. So this is the answer for R inverse. Okay, बहुत इजी था ये, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं थी. ओके, इसके अंदर भी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है. ओके, इसमें कुछ करने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा. ओके, जस्ट आप जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर इसको जस्ट सॉल्व करना है. तो कुछ भी नहीं है, 2a माइनस दिस. ओके, सो 2a आपको करने के लिए पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें. ओके, सो अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 4 माइनस 6 0 एंड माइनस 2. ओके, सो मैं डायरेक्टली लिख लें 4 माइनस 6 0 एंड माइनस 2 माइनस विथ माइनस 5 4 0 एंड 3. जस्ट आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप यहाँ लिख दें. तो मैं ये लिख नहीं रहा क्योंकि इट इज़ वेरी इजी. नाउ सेकंड पार्ट के लिए ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ये भी बहुत आसान है. ए डिटर्मिनेंट के लिए पहले आपको मैट्रिक्स ए लिखना पड़ेगा इधर. सो आई एम राइटिंग हियर. नाउ अब आपको मालूम है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2. अब ये हो जाएगा आपके पास प्लस 0. सो द डिटर्मिनेंट इज -2. ओके, ए इनवर्स निकालना है.
ए इनवर्स के लिए वही फॉर्मूला है आपके पास, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट तो निकाल दिया मैंने, -2 लगा लिया इधर, और आपके पास जो मैट्रिक्स ए है ये 0 एंड 2 साइड स्वैप कर लेंगे अपनी, तो -1 एंड 2 हो जाएगा इधर। ओके, एंड 0 एंड -1 के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -3 जो होगा वो +3 हो जाएगा, एंड 0 का साइन हमेशा कोई हो ना हो सेम रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। तो 1/-2 इक्वल्स टू -1, 3, 0 एंड 2, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ अब ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, इन दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स एक्स। ओके, मैंने जब आपको मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट बता रहा था तो एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था, अगर ए एक्स होगा, ओके, इक्वल्स टू बी, बी कुछ भी हो सकता है। देखो एक्स के यहाँ पे क्या आ रहा है, ए पहले आ रहा है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स बी हो जाएगा। और अगर एक्स ए इज इक्वल्स टू बी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक्स अपनी जगह रहेगा, बी के बाद हम ए इनवर्स करेंगे। ठीक है, सो लुक, ये कब यूज होगा, जब x पहले आएगा, और ये कब यूज होगा, जब a पहले आएगा। सो हेयर x कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला सिनेरियो को यूज करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू b a इनवर्स। सो लुक, b आपको मालूम है कि b इज दिस, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जब आपको यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है, तो अब आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बी आपको दिया हुआ है, दैट इज 4 एंड -2, एंड ए इनवर्स आपके पास ये पूरा दिया हुआ है। तो जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, इधर ये यूं है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। तो लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके साथ हो जाएगा 1/2, और जब भी कोई जीरो से मल्टीप्लाई कोई चीज होगी तो -3/2, एंड 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा। सो ये आपके पास मैट्रिसेस इनवर्स। ओके, अब आप जस्ट यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। अब आपके पास बी ब्रैकेट दे दिया है और ए इनवर्स की वैल्यू भी दे दी है। जस्ट आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी और ये चीज जो है इससे मल्टीप्लाई होगी। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ओके, अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय
0 and plus -2 multiply by -1. ओके, तो लुक ये इस 4 से कटेगा तो 2 बचेगा, ये भी 2 इससे कट जाएगा। सो लुक इसका आंसर के पास जस्ट 2 आ जाएगा, प्लस ये -2 था और ये -3 था तो ये +6 हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस माइनस +3, 4 0 0, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 एंड 2 इज द आंसर। तो x का क्या आ जाएगा पास 5 एंड 2। ठीक है, सो ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जस्ट आपके पास जो भी चीज़ दी हुई थी आपको ये दो सिनेरियोस को देखना है, इन दोनों सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन सी चीज़ पहले दी हुई है कौन सी चीज़ बाद में दी हुई है। तो यहाँ पे x पहले दिया हुआ था तो मैंने सेकंड वाला मेथड अप्लाई किया, सेकंड वाला मेथड अप्लाई करने के बाद जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो आई विल गेट 5 एंड 2 एज x। ओके, तो ये एक मेन पार्ट था जो कि हमें कवर करना था, जो कि हमने देख लिया इसको। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, like it and share with others. Okay, Allah Hafiz.